Hello friends, there was Great Depression during the year 1930s, and to resolve the depression because it will affect on the international trade, then at that time one organization is there which make their way और उसी organization का नाम था World Trade Organization. So friends, welcome. Today we will talk about the World Trade Organization. What are the features? What is the background? How GATT got converted to the WTO principles, and most importantly whole structure of World Trade Organization. So be with me to know all the concerns for the same. Hello friends, today we talk about the most important point for the economic and social issues, and today we talk about international funding organizations. और इसी के तहत आज हम बात करेंगे World Trade Organizations and what are the different perspective. In content, the major point we discuss today is nothing but the first thing is the background of GATT, which is previously known as WTO and WTO. Then followed by WTO perspectives, what are the different types of functions, structure, and most importantly principles of World Trade Organizations, and followed by important perspectives and some of the most important terminologies like our anti-dumping, dumping, blue blocks policies which are used for the World Trade Organization. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम GATT and WTO बैकग्राउंड के बारे में. ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान में रखिए, as we know during the Great Depression of 1930s, economic is very badly affected. Whole world economy बहुत बैड तरीके से इफेक्ट हो गई थी during the 1930s. So during that time different organizations are there. ठीक है, कौन कौन सी organizations थी? First thing is the IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, now it is known as World Bank, इसी को आज कहा जाता है World Bank. Second है IMF, International Monetary Fund, and third जो थी International Trade Organization, that will be GATT, General Agreement on Tariff and Trade, that is the GATT. ठीक है, तो GATT कब से स्टार्ट हुआ था? GATT was established on 1st January 1948. Okay, so 23 member countries were there during the first meeting of the GATT on 30 October 1947, and it is actually came into effect on 1st January 1948. जी हाँ, अब देखिए the major objectives of GATT, as the word itself indicates, जनरल एग्रीमेंट ऑन तारीफ एंड ट्रेड. ठीक है, यहाँ पे क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन तारीफ मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज और मे बी द टैक्सेस, एंड ट्रेड मीन्स नथिंग बट exchange of commodities or goods between one to other countries. So these things are possible by means of the GATT. So major objectives to provide equal opportunities to all countries in international trade. It means there is a parity in whole countries for the trade purpose. जी हाँ, to increase the effective demand for real income growth and goods, ये भी एक important था, and to ensure better standard of living of the people who actually involved in the international trade. So that these are the main important things, and apart from that टेक अ कंसेंसस. जो हमारा तारीफ था, ड्यूटीज था, तो उसमें कुछ ना कुछ सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हमें एग्रीमेंट करना था. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्टन राउंड्स. यहाँ पे मैं नटशेल में बताऊंगा. एक बात अच्छे से देखिए, देयर वेर 8 rounds of GATT. Okay, and in the 8th round of GATT it is converted to WTO, or GATT is repealed by the WTO, that is World Trade Organization. ठीक है, so it was started in their 1947. जी हाँ, 1947 उनका फर्स्ट राउंड था, और ये रहा हमारा 8वां राउंड. ठीक है, that is the second one, third, fourth, fifth, sixth and 7. So till the 6th round, यहाँ तक जहाँ तक हमारे फर्स्ट टू 6th राउंड थे, सो तब तक क्या था? इट विल डील विथ तारीफ रिलेटेड मटेरियल्स. ये तारीफ रिलेटेड मटेरियल्स में ही हमें डील करना था. इट मीन्स नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, मे बी इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, लेवीज, दैट इज नथिंग बट इम्पोजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंटीज. सो ये सब चीजें उसमें आई थी. इसके अलावा व्हाट हैपन ड्यूरिंग द 7th राउंड? ओके, इन द 7th राउंड नॉन तारीफ बैरियर आर ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर भी 7th हमारा जो राउंड था गैट का, विच इज हेल्ड एट टोक्यो फ्रॉम 1973 टू 1979, इसमें नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में हमने बात की थी. और ड्यूरिंग द 8th राउंड टेक्स प्लेस एट द प्लेस दैट इज द उरुग्वे. 8th राउंड कहाँ पे हुआ था? हमारा उरुग्वे में हुआ था. एंड फ्रॉम 1986 टू 1994, एंड ऑन 1995 आवर WTO केम इनटू इफेक्ट. फाइन, सो ये उरुग्वे में राउंड हुआ था.
The place is Uruguay, that's why it is known as Uruguay round. The round headed by the Director General, or the head is nothing but Mr. Dunkel, Mr. Arthur Dunkel. Fine. So due to that, this 8th round is also known as Dunkel's proposal, because in the 8th round he proposed one thing, or he proposed one document. According to that, GATT got converted to the WTO. That's why the round is also known as Dunkel's proposal. ठीक है. So यहाँ पे क्या हुआ था, तारीफ, नॉन तारीफ एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस बारे में भी किया गया था बात. तो देर आर 123 मेंबर्स, 20 मेंबर्स भी इनके ज़्यादा बढ़ गए थे. सो दीज आर द थिंग्स फॉर द GATT वन, और these are the things when actually the establishment under the WTO, World Trade Organization. Fine. अब देखिए, Uruguay round contained the mandate to have negotiation in how many areas? 15 areas. 15 areas में negotiation करना था इनको. ठीक है, 15 areas. So यहाँ पे क्या हुआ, in which part 1 consist of 14 areas. इसमें भी दो पार्ट किए गए, part first, part second. Part first consists of 14 areas and part second consists of just one area, that is nothing but the service. ठीक है. So that is the whole distribution under the Uruguay round. Now we talk about important thing for the World Trade Organization. Exactly WTO की विशेषताएं क्या थी, ये बात करेंगे. सबसे पहले जो चीज बहुत बार पूछी जाती है for the World Trade Organization is nothing but the is headquarter, that is Geneva, and कई जगह पे rather than उसकी लोकेशन कंट्री पूछी जाती है कि WTO हेडक्वार्टर इज एट विच कंट्री. सो डेफिनेटली जिनेवा इज प्रेजेंट इन द स्विट्जरलैंड. ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए. अगेन एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसमें डेट भी ध्यान में रखिए, 1 जनवरी 1995. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी ऑप्शंस आ सकते हैं. सो इट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995, 1995. अब इसमें एक ध्यान में रखिए, GATT गॉट कन्वर्टेड इनटू WTO. ठीक है. सो 1994 तक क्या था, GATT था, उसके बाद WTO है. सो क्रिएटेड बाय उरुग्वे राउंड. द मेंबरशिप आर 164 मेंबर्स. करंटली 2016-17 से इतने ही मेंबर है. आज के कंडीशन में 2021 तक ही इसके इतने ही मेंबर है. कितने, 164. एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, 164th मेंबर इज अफगानिस्तान. ठीक है, ये चीजें भी आ सकती है. 164th मेंबर इज अफगानिस्तान. ओके. करंटली द डायरेक्टर जनरल, ध्यान में रखिए, द डायरेक्टर जनरल 5 फरवरी 2021 को नए डायरेक्टर जनरल की वहां पे नियुक्ति की गई है. एंड ही मेकिंग द चार्ज, क्यों, या उन्होंने एक्टिवेट किया था चार्ज फ्रॉम 1 मार्च 2021 से. ऑफिशियली ही इज इनेक्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO. क्या नाम है उनका, डॉक्टर नगोजी ओकांगा इविलिया. ही इज फ्रॉम नाइजेरिया. उनकी कंट्री भी ध्यान में रखिए, ही इज फ्रॉम नाइजेरिया. और ये रिसेंट है, ही टेकन द पार्ट और ही इज हेडेड एज अ डायरेक्टर जनरल फ्रॉम मार्च 2021. फाइन. अब हम उसके बारे में बात करेंगे. सर्टन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO. यस, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज वन ऑफ द थिंग. एंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, एंड हाउ इट इज पॉसिबल, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. फाइन. Ensuring growth of real income and demand, yes, that is there. Expanding production and trade. We have to expand, हमें expand करना है. हमारा प्रोडक्शन अगर हम expand कर पाए, प्रोडक्शन हम ज़्यादा बढ़ा पाए, then and then only productivity and trade both got increase. तभी वो hand in hand जा सकता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम जो भी कुछ करेंगे वो चीज़ दैट कुड बी रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब हमें लॉन्गर व्यू देख के चलना है. वी आर नॉट गोइंग इनटू द शॉर्ट रन, वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू. भविष्य में भी जो चीज़ें हमें काम में आ सकती है, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगेन यहाँ पे हमें प्रायोरिटी सेक्टर को ज़्यादा फोकस करना है, लाइक एग्रीकल्चर, लाइक दिस वे. Protection of the environment, definitely here the main objective apart from all which are already specified is the environment protection. और इसी के हिसाब से we have to measure the environment, we have to protect the environment with different things, with different measures. Now we talk about the most important thing, that is the structure of WTO. ध्यान में रखिए, there are two important conference और two important bodies of WTO, जो सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, व्हाट हैपन इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इट इज द मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी. इसका मेन काम क्या है,
पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, एंड इट इज रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 2 years। हर 2 साल के बाद ये रिवाइज होती है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, इट हैज द हाईएस्ट अथॉरिटी। सबसे बड़ी अथॉरिटी किसके पास है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, फॉलोड बाय जनरल काउंसिल। सो यहाँ पे 1 member फ्रॉम ईच कंट्री, सो करंटली देयर आर 164 member, ठीक है। Then followed by that 4 committees are there, committees on different types of things that could be there like trade and environment, trade and development, BOP that is balance of payment, balance of payment भी है यहाँ पे, nothing but whole transaction of the resident of the country compared to the whole world, that is balance of payment, budget, finance. Then council for trade in goods, in terms of goods like market access, agriculture, SPS measures, टेक्निकल बैरियर, सेफ गार्डिंग, एंटी डंपिंग, ये सब चीज़ें हैं। इसमें देखिए मार्केट एक्सेस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर द एग्रीकल्चर देयर इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इन आवर WTO के अंतर्गत एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी है। आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ वीडियो ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि उसमें व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स और बैरियर्स कौन कौन से हैं एंड व्हाट आर द मेजर्स फॉर द सेम, ये उसमें दिया गया है। आई विल गिव द लिंक इन द आई बटन। फाइन। काउंसिल ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, financial services, regulation for GATT's rule, general agreement on trade in services means GATT's, then civil aircraft committee, and finally government procurement committee. अब इसके अलावा there are 2 again important things are there which are there for the WTO में 2 bodies भी है, ठीक है। 2 important bodies थी WTO में, जैसे हम बताए 2 important committees कौन कौन सी थी, nothing but जनरल कॉन्फ्रेंस एंड जनरल काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये हाईएस्ट बॉडी थी इसकी, एंड जनरल काउंसिल में हर एक मेंबर था हर एक कंट्री का। अब देखिए 2 बॉडीज कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज द DSB, इट मींस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। मतलब जो भी कुछ 2 कंट्रियों के बीच या बहुत कंट्रियों के बीच, इफ देयर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, दैट इज द डिस्प्यूट, देन वी हैव टू सेटल द डिस्प्यूट विद द हेल्प ऑफ DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। एंड सेकंड इज नथिंग बट द TPRB, TPRB का मतलब था ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, दैट इज द TPRB, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। सो हियर रिवीजन और रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसी आफ्टर एवरी सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ ट्रेड पॉलिसी है दोनों देशों के बीच, देयर इज एग्रीमेंट, देन इफ सपोज इन फ्यूचर इट रिक्वायर्ड देन दैट कुड बी रिवाइव्ड, वो उसको रिवीजन होना चाहिए, दैट्स व्हाई TPRB इज देयर। मतलब any type of problem is there then you have to follow DSB for any type of disputes, and for the trade policy में अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है then you have to go to the TPRB, trade policy review body। so ये दोनों चीज़ें आप उसके ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकते हैं। now in terms of TRIPS, यहाँ पे और एक चीज़ थी, that is TRIPS, trade related intellectual property rights, that is the TRIPS one, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें थी ट्रिप्स में। ट्रिप्स में देर आर, यहाँ पे एक ध्यान में रखिए, in terms of IPR, ठीक है, देर आर डिफरेंट 6 पैरामीटर्स फॉर द WTO पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो उसमें क्या था, ट्रिप्स था, ट्रिप्स में कॉपीराइट, देन फॉलोड बाय ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, लाइक GI, नथिंग बट द इंडिकेटर्स, देन ब्लूप्रिंट्स, ये भी उसमें चीज़ें हैं। पर आज हम खाली ये तीनों पे फोकस देंगे, एंड IPR के लिए मैं एक अलग से सेशन लूंगा सो दैट यू आर एबल टू नो ऑल द थिंग्स एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स। देखिए ट्रिप्स का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सो ऑल दीज आर इंटेलेक्चुअल वन, ठीक है। अब और एक वर्ड्स आ सकता है TRIMS, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, सो हियर I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। So copyright right given by the law typically with concern to the recordings, music, movies, so उस हिसाब से जो right दिया जाता था law के हिसाब से, so that is the copyright law. Then trademark is nothing but the distinctive sign of identification of the particular brand or particular organization. So ये हो गया हमारा trademark, ठीक है। So यहाँ पे हम जैसे कह सकते हैं T, so that is nothing but the symbol of trademark. और हमारा थर्ड था पेटेंट। सो पेटेंट इज द एक्सक्लूसिव राइट गिवन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इन्वेंशन, अगर आपने कुछ इन्वेंशन किया है सो उस हिसाब से पेटेंट मिलता था। जनरली पेटेंट इज गिवन अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट, IPA के अंतर्गत इंडिया में पेटेंट मिलता है फॉर द स्पैन ऑफ 20 ईयर्स, 20 सालों के लिए पेटेंट आपको मिलता है, ठीक है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन GATT एंड WTO। कीप इन माइंड देयर मस्ट बी सर्टन
लैकुनास ड्रॉबैक्स थे हमारे गैट में, सो दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द WTO। अब सबसे ज़्यादा क्या क्या लैकुनास थे वो हम बात करेंगे। नेचर, गैट इज अ टेम्पररी वन वाइल WTO इज अ परमानेंट इन नेचर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट है हमारा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। मेंबर्स, अगेन द मेंबर्स आर द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज, बट हियर फुल एंड परमानेंट मेंबर्स आर देयर। स्ट्रक्चर, set of rules and multilateral, we could say, agreements are there, but here it is a permanent in nature. Rules, generally all rules are there generally only for the goods, trade in goods, trades in merchandise goods, पर यहाँ पे trade in goods, trades in services and most importantly intellectual property right, ये तीनों चीजें यहाँ पे थी। डिस्प्यूट्स के लिए कुछ अलग से कुछ बॉडी नहीं थी, दैट्स वाई डिस्प्यूट सेटलमेंट इज वी कुड से बहुत कम होता था या फास्टर मोड पे नहीं होता था। बट इन टर्म्स ऑफ WTO वी हैव द DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, रिलेटेड विथ, जनरली इट इज रिलेटेड विथ द ट्रेड बैरियर्स, बट WTO रिलेटेड विथ द तारीफ एंड नॉन तारीफ बैरियर, दोनों है। यहाँ पे खाली तारीफ था गैट में, बट यहाँ पे हम तारीफ एंड नॉन तारीफ दोनों बैरियर है। कवरेज, रिस्ट्रिक्टेड कवरेज, बट इट हैज द ब्रॉड कवरेज। एस्टेब्लिशमेंट 1948, 1 जनवरी 1995। बॉडी प्रोविजनल थी, बट यहाँ पे DSB, ट्रिप्स, TPRB, इवन ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, सो ये सब चीजें आ गई। नाउ वी टॉक अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस। द फंक्शन में सबसे बड़ी बात थी फर्स्ट वन, एडमिनिस्टर द इम्प्लीमेंट द WTO एग्रीमेंट, मतलब जितने कुछ एग्रीमेंट है WTO के, वी हैव टू एडमिनिस्टर द एग्रीमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। देन फोरम फॉर निगोशिएशन टू मेंबर कंट्रीज, हर एक को मिला के, हर एक को हमें निगोशिएशन करके वी हैव टू मेक द कंसेंसस, उस हिसाब से हमें एग्रीमेंट बनाना था, दैट कुड बी यूजफुल टू द यूनिलैटरल वे, हर एक के लिए काम में आ सकता है। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, एंड एडमिनिस्टर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एज वी नो देयर इज अ DSB, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू वी हैव ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है। सो दीज आर, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी फंक्शंस, इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम, ये भी आ गए। देन फॉरेक्स रिजर्व, वी हैव द फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो सकता है, वो भी आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो दिस कुड बी द फंक्शंस। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, व्हेन वी कॉल ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी कंट्री में हमें एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं करना है, सो दैट इज देयर विथ डिस्क्रिमिनेशन। There are two ways, most favored nation means MFN and your least favored nations means there could be a differentiation between two countries. Most favored nation like our different types of developed countries, least favored nation underdeveloped country. तो trade करते वक्त हमें ये differentiation नहीं करना है। Free trade, definitely free trade could be possible with mutual understanding among the two countries. If example India, Sri Lanka go for the free trade, so that could be depend on their mutual understanding, so gradually through negotiation that could be possible. Predictability, yes, definitely we could predict about the trade through bindings, and yes, there is a clear transparency possible in the trade one. Promising fair competition, देखिए competition तो definitely रहने वाली है trade में, but the competition in the fair manner, that's why it is important to have the fair competition. Encouraging development and economic reforms, यस, क्यों ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन देर इज अ रिफॉर्म्स, व्हेन देर इज अ एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स, डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए वो बूस्टफुल साबित होगा, हर एक इकोनॉमी के लिए वो अच्छा फायदेमंद साबित होगा। फाइनली वी टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन WTO. सो QR इज नथिंग बट द स्पेसिफिक लिमिट ऑन द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स दैट कुड बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप इस पीरियड में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्स एनी कमोडिटी के लिए। सपोज हमने एक्स कमोडिटी पकड़ लिए, सो उस हिसाब से द स्पेसिफिक लिमिट उसमें फिक्स किया गया है, दैट इज द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तारीफ, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इट इज टैक्स इम्पोज्ड, जनरली तारीफें इम्पोजिंग किया गया है ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, बट अगर सिचुएशन आई तो डेफिनेटली इट कुड बी इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हमारे पास उसकी कल्टीवेशन कम हुआ है, हमारे पास ही अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर हम एक्सपोर्ट करने को गए, सो डेफिनेटली वी रिक्वायर तारीफ ड्यूरिंग दैट कंडीशन, बट जनरली इट इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड कमोडिटीज। कोटा, स्पेसिफिक लिमिट ऑन ट्रेड बैरियर ऑन द फिजिकल अमाउंट ऑफ कमोडिटीज फॉर द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। डंपिंग, अब देखिए ये एक सबसे बड़ी बात है। डंपिंग मतलब क्या है, इट कुड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द अनफेयर ट्रेड। अनफेयर ट्रेड मीन से मतलब डंपिंग है। इसमें क्या होता है, सेलिंग ऑफ अ गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ लो प्राइस। अब ध्यान में देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग ऑफ अ गुड्स
in one of the other country at a price which is lower than the cost of production in the particular country. मतलब उस देश में जितनी कॉस्ट को बनता है उससे कम अगर हम वहाँ पे बेचेंगे तो डेफिनेटली दैट कुड बी अनफेयर वन. सो दिस इज डंपिंग वन. दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. बहुत से कंट्री ये करती है. क्यों करती है? टू गॉट द मार्केट. एक बार मार्केट में आ जाने तब तक वो पूरा अच्छे से सेल कर देती है. अगर मार्केट में आ गए तो देन इट कुड बी अ पोजिशन टू हैव द मोनोपोली. ठीक है. एंटी डंपिंग, डंपिंग नहीं हो इसलिए दो मेजर्स आर देयर दैट आर नथिंग बट द एंटी डंपिंग मेजर्स. सो इट इज नथिंग बट द रिलीफ मेजर्स फॉर द डोमेस्टिक कंट्रीज वेयर डंपिंग कुड बी पॉसिबल. अब 3 पॉलिसीज है WTO की. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ये बहुत बार गिर सकते हैं आपको. ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स. इन विच द ग्रीन बॉक्स पॉलिसीज आर द डोमेस्टिक सपोर्ट पॉलिसीज. ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखिए. इट इज द डोमेस्टिक सपोर्ट पॉलिसीज एंड अफेक्ट ट्रेड मिनिमली. ट्रेड को बहुत कम मिनिमली अफेक्ट करेगा. दैट्स वाई इट कुड हैव अ डोमेस्टिक सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स, मे बी द रिसर्च, एक्सटेंशन और ऑल दिस. So this is the supporting one. Blue box policies. It refers to direct payment to producers like income supporters and not linked to the production. So again domestic blue box भी है, ये भी हमें support policy ही हम कह सकते हैं. या इसका भी ट्रेड पे कुछ मिनिमल इफेक्ट नहीं होगा, होगा तो मिनिमल ही इफेक्ट होगा, ज़्यादा इफेक्ट इसका भी ट्रेड में नहीं होगा. बट विथ कंसर्न टू एम्बर बॉक्स पॉलिसीज, अब ध्यान में रखिए एम्बर बॉक्स पॉलिसी में क्या है. दीज आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसीज. मतलब अगर ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है सो डेफिनेटली द मेजर प्रॉब्लम फॉर द ट्रेड इज पॉसिबल बाय द एम्बर बॉक्स पॉलिसीज एंड आर कवर्ड अंडर रिडक्शन कमिटमेंट इन WTO. तो ये हमें कम करना है. बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज गिवन द एम्बर बॉक्स पॉलिसीज फॉर द डोमेस्टिक सपोर्ट. डोमेस्टिक सपोर्ट कह सकते हैं हम. कुछ डोमेस्टिक सपोर्ट के अलावा इफ सपोज देयर इज एनी टाइप ऑफ सब्सिडी, okay, if suppose there is any type of subsidy provided by the government, so that could be covered under amber box policies. Fine, but it is according to WTO क्योंकि हम हमारे लोगों को दे रहे हैं. but definitely according to WTO ये unfair हो गया. that's why they have to reduce. it is committed under the reduction commitment in WTO. okay, these are my details. if you think anyone, you could mail me. okay friends, I think the session is definitely useful to you. Here we converted different. Okay friends, I think the session is definitely useful to you. Here we talk about different things which are important for the World Trade Organization, starting from background till the different types of functions and important terms and certain policies, maybe the blue box, amber box or the green box policies. So definitely session is useful to you. Now we talk about some of the important things in our next session, that is nothing but the IPR, intellectual property rights. So stay tuned for the next session. Till then, thank you.